our youth. बहुत चीज़ों में टैबू आ जाता है या फिर अरे कैसे बात करेंगे, अवॉइड कर देना चाहिए. So when you have a show like this, which I did see a sizzle reel, and congratulations to all of you, because हम थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो we also feel as actors or as performers, do we dive into this? But there's a certain fearlessness with this material, the season that's going to come out. There are certain topics that must be always spoken about. So I'm really happy that there are newcomers, there are young people working, like-minded people working to tell stories that really connect with the audience that watches the show. At the end of the day, I always feel आपको कभी-कभी youth से बात करने के लिए खुद youth का ही इस्तेमाल करना पड़ता है. मैं अब बुजुर्ग होने वाला हूँ, मेरे सफ़ेद बाल आना चालू होने वाले हैं. So it's really nice to see that, to be able to speak about mental health, physical health, emotional health. You know, you go through so much when it comes to these subjects like sex. It's not easy to confront it with your, even your friends, even your family, even people who you normally would confide about a million other things. These are those few things कि आप बोलते हो छोड़ो यार, let's not get into it. And वो छोड़ो यार का time चले गया, because why should we not be free to talk about everything under the sun? हम लोग बाकी सब बातें कर लेंगे, हम लोग सोशल मीडिया पे सब कुछ पोस्ट कर लेंगे, हम लोग सारे विशेष कर लेंगे, लेकिन जब ज़रूरत होती है इन ज़रूरी चीज़ों की बात करने की, तो आई थिंक this is a great platform to allow the youth in our country, and there is a lot of conversation that is due to be had. So I'm glad that this show and MTV and by me just being over here today, if I can spread the message for maybe a few more people to watch it. I think the conversation starting is very important. बातों बातों से ही लोगों को एक, I would say, you feel at ease. I think what's important is you don't need to be worried कि यार हम कुछ गलत सोच रहे हैं या गलत बोल रहे हैं या गलत कर रहे हैं. We are a very curious population, and the numbers speak for itself. I think in all fairness and in all genuineness, I think I'm just glad to be part of a movement and a cause which speaks about so much more than just entertaining, but also starting a conversation. So thank you, MTV. And the show is going to be out this weekend. It's going to be out on MTV, and then it's going to be on Voot whenever you guys want to watch it. Saturday, Sundays. If I'm not mistaken, it's 8 p.m. So I'm really happy that I'm going to be here promoting it, talking about it, and allowing a platform perhaps for it to reach even more people than it already has with season 1. So thank you, MTV. Thank you very much, Arjun, for those powerful words. And I'm sure the way you've spoken about it, a lot of youth is really feeling empowered already. What do you say, guys? How are you feeling now? Much better, right? So this is what happens, you know, when you get a support of youth icons like you. So youth feel a little more powerful, and then they easily speak, I right? never understood what a youth icon is, so I'm quite curious. So if, I don't know, for me, in general terms, what I believe, somebody who stand by for themselves, who talks about different topics like this freely, you know, so they are our youth icon, as simple as that. Yeah, we've been banned for speaking about taboo things in the past, but All right, now Arjun, as you're here, the energy meter of the room is already high. I think it is the perfect time for all of us to see the promo of MTV Nishad Season 2. Let's watch that. Yes, please. Go ahead. All right. सुनिए आप सभी. स्पॉटलाइट ओके ठीक है. नहीं मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट इंडिया में अभी भी ऐसे काफ़ी लड़के हैं जिनकी ऐसी थिंकिंग है. सो आई थिंक इस कैरेक्टर के थ्रू और इस शो के थ्रू हम उन लड़कों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्लीज़ उस सोच को आप हटाइए. और अच्छा, तो आप ये मैसेज दे रहे हैं कि वो सोच को हटाइए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है, उनकी पास्ट रिलेशनशिप क्या है ना, राइट? आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग. आई एम श्योर यू गोना वॉच इट. ओके, अब आपसे बात करते हैं. हमने सुना है आप इस शो में एक ब्लू फिल्म बना रही हैं. प्लीज नो, नॉट एट ऑल. ये ब्लू फिल्म नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है. मैं सेक्स पॉजिटिव और रिलेशनशिप के ऊपर फिल्म बना रही हूँ इस शो में. क्या है, हमारी सोसाइटी ना इन सब चीज़ों को एज अ टैबू देखती है, या दे फील कि इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए. एंड आई पर्सनली, अनाया एंड आशिमा पर्सनली, आई फील कि पीपल शुड टॉक openly and freely about it, and it is very important in a relationship. लेकिन हमारी सोसाइटी Exactly, I understand. गंदी बात है, let's not talk about it. But ये सोच, ये छोटी सोच हम बदलना चाहते हैं through this show. करेक्ट. आई थिंक अभी जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं वो बिल्कुल क्यूरियस हो चुके होंगे कि यार अब हमको तो देखना ही पड़ेगा, साथ में अपने पेरेंट्स, बड़े भाई बहन जिनको ज़्यादा हिचक होती है कुछ भी बात करने से, उनको भी दिखाना पड़ेगा ताकि इजीली हम कॉन्वर्सेशन तो कम से कम कर पाए. वैसे दिस इज वेरी ट्रू. सेक्सुअल हेल्थ की बात करने में आई डोंट थिंक सो कोई गंदी बात होती है. गाइस, व्हाट डू यू से? आई एम श्योर इट्स नॉट अ गंदी बात. व्हाट डू यू से?
गुड वी रियली लाइक दैट वॉइस, ये आवाज एक साथ ही बुलंद करते रहेगा. सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट मैसेज. थैंक यू वेरी मच. एंड नाउ बड़ी जगह की बात नहीं करूँगी, ये इंडिया में हर जगह ज़्यादातर ये है कि शादी हो गई है तो जल्द से जल्द पोता पोती एज यू वी हर्ड होना चाहिए, जल्दी फैमिली बढ़ा लेना चाहिए. बट वो इन सब बातों में ये भूल जाते हैं कि सब लोगों के एक सपने हैं, उन लोगों का ये सोचना है कि हम पहले कुछ बन जाएं, कुछ हासिल कर ले, ताकि अगर बाद में जो फैमिली बढ़े, बच्चा जो भी आए, उसकी अच्छी तरीके से परवरिश हम लोग कर पाएँ. सो यस, क्या कहना है अजय? और इसीलिए हम शो में भी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग. और अगर अनचाही प्रेगनेंसी हो भी जाए तो फिर हमारे पास सेफ ऑप्शंस तो हैं ही. या करेक्ट. आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है और हम सभी को देखना चाहिए कि आखिर क्यों, मतलब इतना जल्दी जल्दी फैमिली बनाओ, उसमें कितना कुछ, जिनकी शादी हुई है वो तो कुछ एंजॉय नहीं कर पाते, राइट? सो आई थिंक दिस इज अ गुड मैसेज. थैंक यू वेरी मच. क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में? कई बार ऐसा हो जाता है लाइफ में कि लाइक 70% पॉजिटिव बॉयफ्रेंड मिल ही जाते. थोड़े से सब हंस रही हैं, सारी लड़कियां हंस रही है उधर. थोड़े कंट्रोल नेचर वाले कि कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, किससे बात कर रही हो, तुम पहुंची तो तुमने टेक्स्ट क्यों नहीं किया. तो ये चीज़ें जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें बहुत जल्दी से आप ट्रैप तो हो जाते हैं लेकिन इजीली निकल नहीं पाते, किसी को पता नहीं होता. सो उससे निकलना बहुत मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है. तो इसलिए ऐसे बॉयफ्रेंड्स को भी देखना ज़रूरी है ताकि ऐसे बॉयफ्रेंड्स ना बनाएं. वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, सो यहाँ पे इतनी सारी लड़कियां एकदम से ना जोन आउट हो गई है, मतलब कुछ सोचने लग गई. भाई रुको, सोच के डिसीजन लेना जो भी है. ओके, थैंक यू वेरी मच. मेहुल बिल्कुल सही है, अगर ठान लो तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओके. हाँ, आर यू एन इन्फ्लुएंसर ऑलरेडी? नो. सो बिकॉज आपका लुक एकदम परफेक्ट लग रहा है, सो मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया. बट कमिंग टू द पॉइंट, आप मुझे ये बताइए, ये क्लिपिंग में बिल्कुल यही है. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? बिल्कुल यही होता है, यू नो, कि वी गेट टू मच इनटू द प्रोसेस ऑफ गेनिंग फॉलोअर्स, कि उसमें भाई खा रहे हैं कब है, सो रहे कब है, और फिर तो हेल्थ की लग जाती है, राइट? बहुत बार हम फ्लो में बहुत चीज़ें भूल जाते हैं. जैसे मेरे कैरेक्टर ने भी अपने सिम्टम्स को इग्नोर किया. सो आई वुड एडवाइस कि अगर आपके पास या आपको खुद सिम्टम्स हो रहे हैं, सो प्लीज़ विजिट डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स. या वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी प्रेम नगर की पू के लिए. आई थिंक सो यू अबव 100 एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. It was 140 kg. या तो आपने कभी आपने भी खुलकर बात की थी उस वक्त, या यू आर आल्सो फेसिंग कि अभी मैं किस तरह से बात करूं, या यू वांटेड टू कम इनटू फिल्म्स लेकिन थोड़ा बिकॉज ऑफ द वेट शर्मा रहे थे? ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे कहीं ना कहीं कल्चर में. क्या है ना, वो हम लोग आके बोल देते अरे यार थोड़ा मोटा हो गया, और फिर चले जाएंगे और सडनली बोलेंगे हेल्दी हो गया ना थोड़ा सा, और फिर तो वो आप यू डोंट रियलाइज दैट इट अफेक्ट्स यू आज भी. और मैं ये नहीं कह रहा कि आई एम ओवर इट, बिकॉज इन माई हेड आई एम स्टिल एन ओवरवेट पर्सन. आज भी अगर कोई मुझे कह देता है कि यार अरे यू पुट ऑन लिटिल वेट, वो मुझे बहुत अफेक्ट करता है. बिल्कुल करता है, बिकॉज मेरा प्रोफेशन है वो एक तरफ है, लेकिन मेरी मानसिक संतुलन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, बिकॉज मैं शायद 12-14 साल की उम्र से ये डील कर रहा हूँ. आई पुट ऑन वेट व्हेन माय पेरेंट्स स्प्लिट अप, एंड दैट इज समथिंग आई हैव स्पोकन वेरी ओपनली अबाउट. आई स्टार्टेड ईटिंग एज एन इमोशनल वैक्यूम. अब ये चीज़ आज मैं बोल सकता हूँ आपके सामने, बिकॉज मुझे लगता है लोग समझ पाएंगे. शायद 20 साल पहले आके बोलता तो कोई समझ नहीं पाता. तभी उस समय थैंकफुली आई वॉज वेरी हैप्पी ईटिंग, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी बीइंग इन माई ओन बबल. My health suffered. I had asthma because of that. I couldn't take care of myself. I recovered from that and I decided I want to pursue a profession, so I lost weight. A lot of people don't get that motivation that their profession makes them lose weight. You still end up working 9 to 5. आपको वो motivation नहीं मिलती. I did suffer, but मेरे profession के वजह से जो मेरी चाहत थी, I pushed myself. I suffered a lot, definitely. I keep saying this, you have family members, you have friends around, but eventually they can only understand and do so much. You have to get up and do something. Where obesity is concerned, I always say this, people can only support you, they cannot do anything for you. It is a taboo subject in our country also, because a lot of women are told if you look this way, nobody will marry you. But unfortunately, not enough men get told that. They should. If that is the case, then it should be equal. But I do believe this, and I really, really say this from the bottom of my heart. We have to learn to be kind to people. When they're going through something, try and understand. That's very important. वो बहुत ज़रूरी चीज़ है. We are not kind enough to understand why a person is the way they are, or what could be the reason. I have health issues, like I'm sure you do, we all do. But कोई मुझसे ये सवाल पूछेगा नहीं, क्योंकि मैं एक्टर हूँ तो मेरा काम है.
बट अगर मैं नहीं होता, मैं उम्मीद करता कि मेरे दोस्त जानने की कोशिश जरूर करे, यार why you like this, यार what happened, is there something bothering you, we see you eating differently now, जब मौका मिलता है we see you eating burgers and fries and pizzas, is there some, you have to be there for each other. I perhaps didn't need it in that sense because मेरा प्रोफेशन बन गया वो कि मुझे एक्टर बनना है, तो मैं एकजुट होकर लग गया था. हमारे आपस में जब होते हैं, anybody that is going through, whether it is obesity or any other things that we speak about, you need people to be there for you and ask you and help you and encourage you. फिर ही आपको वो मिलता है कुछ करने का. आप एक बार फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे, लेकिन आपके आसपास अगर सही लोग होंगे तो कहीं ना कहीं आप वो धक्का ले ही लोगे आगे बढ़ने का. So I really feel it's a lot to do with being supportive to people who are going through stuff. When I was overweight, I had good people around me, so I was able to push. अच्छा, ये जैसे खुल के बोल है, इसीलिए वन मोर क्वेश्चन. एक्चुअली रिसेंटली उसको वरना नहीं पूछते आप सवाल. नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मतलब ये थोड़ा मौका और प्लेटफॉर्म है और दस्तूर है, यू कैन से. एट प्रेजेंट स्टेज व्हाट योर रिलेशनशिप विद मलाइका यू गोइंग ऑन? We'll switch. I would like. I would like to stick to what we've come here for. There are Okay, now everybody, questions for the cast of MTV Nishad season 2. Please shoot your questions. Yeah. सर आप खुल के सवाल इन सब से भी Our cast is looking for your questions. चलो, इंस्टेंट बॉलीवुड से आप आए हो सर. नहीं, मैं कह रहा हूँ आप इंस्टेंट बॉलीवुड से आए हो. आप मुझसे सवाल जरूर पूछोगे और वो सर आंखों पे मैं आपका जवाब दूंगा. लेकिन यहाँ पे इतने सारे न्यू कमर्स है, आप उनसे भी एक सवाल पूछ के देखो पहले, फिर उसके बाद हम बात करेंगे. आपने मुझसे सीधा तीखा सवाल पूछ लिया. आप सबसे पूछिए ना सवाल. अर्जुन कपूर जी का सिचुएशन कैसे हो सकता है? अभी अर्जुन सर के साथ Q&A we are done. Now please ask questions to the cast. आराम से. Yeah. आप सवाल सोच लिए फिर इनसे पूछ लीजिए. Yeah. Hello. जी सर. जी सर. जी 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 जी. अगर कोई उनको बोलता है कि भाई ये तेरे लिए सही नहीं है, तू मत देख, उनके फ्रेंड्स है, उनके पेरेंट्स है, उनके कोई वेल विशर्स है, जी जी जी. वो उनके मन में नहीं आता. वो बोलते तू हमसे, आपको क्या पता है, हम लोग आजकल के यूथ है, हमें सब पता है. आज के कॉलेज स्टूडेंट्स है जी. स्कूल के स्टूडेंट्स है, जी. तो उसके बारे में मैं आपसे और जो पूरी टीम बैठी है जी. उनसे कुछ पूछना चाहूँगी. उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि उसका सोशल मीडिया जो है वो अपनी हेल्प के लिए जी. हमें Correct, आगे की correct. इंफॉर्मेशन क्या मिले, क्या है क्या नहीं, तो उसका इस्तेमाल कहाँ तक होना चाहिए और किस हद तक होना चाहिए? I think मैंने बहुत सवालों का जवाब दिया है, खुल के Exactly. दिया है. I think this is Yes. an opportunity because they are also connected to the Absolute. youth, so I would like it if all of them also answer some questions. Thank you so very much, Arjun. And now everybody, please ask your questions to the cast. We're done with questions with Arjun. Yeah, I Please, have a question. cast. Excuse me, guys. Can we have the mic? They want to ask the question to the Yeah, cast. excuse me. Yeah, I. जी 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 जी. start the mic. No, it's not. Can we give the mic to... Sir, we are giving you the mic. Just a second. Please listen, sir. Excuse me. In all due respect, we will give you the mic when it's in time. We distribute the questions have already come to us. So if you can give us 5 minutes, please. In all due respect. All right. Thank you. So now we've got a question for the cast from one person who's waiting over here. If you can सर please उनका go- सवाल पेंडिंग है तो पहले उनका जवाब दे देते हैं. जी जी. Yeah. उनके कुछ सवाल ऑलरेडी पेंडिंग है कुछ लोगों के, तो पहले वो जवाब देते हैं. Yeah, hi. I have a question for the cast of the show. I want to know how much do you relate with this show, with the MTV, and any real life experience that you would want to share, all the cast. If you can answer this question, how much do you relate with this show? Can I start? Yeah, sure. Okay, so I very much relate to the show. I think that's the only reason why I said yes to the show. As an actor, when you get an opportunity, जहाँ आपको लोगों को aware करने को मिलता है through a show, through your work, and you're getting paid for it, the best thing. So why would you say no to it? And मुझे personally, coming from a small city like जम्मू कश्मीर, तो वैसे भी आपको पता है पहले ही बहुत बैकवर्ड चल रहे हैं हम, तो वहाँ से आके मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीज़ें थी जो मैं अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर पाई. काफ़ी चीज़ें वी रब अंडर द कारपेट, वी डोंट टॉक अबाउट इट, वेदर इट्स इन कॉलेज और स्कूल विद आवर टीचर्स और पेरेंट्स और कजन्स, वी डोंट टॉक अबाउट इट. सो कमिंग डाउन टू बॉम्बे gave me a feeling where
I met people and I saw the culture and how people evolve. And I thought that, you know, a show like this is a must for me. Because मैं काफ़ी हद तक इस show से change हुई हूँ. So please guys watch it. It's a must with your family. All need to watch it together. Please. Don't be ashamed. Anyone else wants to answer from the car? या मैं इसी चीज़ में थोड़ा सा और ऐड अप करना चाहूँगा. मुझे जब इस शो की बात चल रही थी तो मैंने सीज़न 1 देखा और कुछ कुछ पॉइंट्स थे जहाँ मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया एज एन एक्टर, जो मैं हूँ, जो मैं इंसान हूँ. लेकिन सीज़न 2 में वही चीज़ें करते वक्त मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई, या मैं बिल्कुल ओपनली बात कर सकता हूँ किसी भी चीज़ के बारे में. सो या आई रिलेट अ लॉट बेसिकली विद सीज़न 2. थैंक यू. सो मैं भी इसको स्ट्रांगली रिलेट करता हूँ क्योंकि मैं भी एक बहुत छोटा शहर तो नहीं, लेकिन जैसे कि मैं इंदौर से हूँ, इंदौर भी एक बहुत बड़ा शहर है, बट वहाँ पर भी जो सोसाइटी है वो आपके आस पड़ोस के हिसाब से चलती है. सो उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो सोच है, उसके हिसाब से हमारे घर वाले बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं. और वो हमेशा ये नहीं सोचते कि जो भी ये बंदा है यहाँ, मतलब एनीथिंग, जो भी चीज़ है वो हमें कैसे इफेक्ट करेगी, वो हमें डायरेक्टली इफेक्ट करेगी या हमें सोसाइटी के थ्रू इफेक्ट करेगी. तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है. इसलिए शायद ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट था जो मुझे करने में बहुत मज़ा आया. और मैंने जैसे ही मेरे पास ये ऑडिशन आया और मैंने वैसे के वैसे ही ऑडिशन दिया और एक बार में मुझे पूछा गया और मैंने हाँ कर दिया. सो इट्स लाइक हम भी बताना चाहते हैं कि दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टॉपिक. Everyone should know about it. Correct. Okay, on that note, we'll take one last question, then we'll do the photo op. One last question, please. I just want to answer, how does it feel to be a part of the show like MTV Initiate 2? And what bring forth the social taboo topics? Taboo topics. I think I have, yeah, please. हेलो जी. टैबू मतलब हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, बट इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स हैं, राइट. हम सबके लिए टैबू अलग हो सकता है. मेरे लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, पर शायद मेरे पार्टनर को या फिर मेरे और फ्रेंड्स या फैमिली के लोगों को इफ़ेक्ट ना करती हो. ठीक है. तो पहली बात ये है कि जब हम इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमें लगता है कि दिस इज़ ओके, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होना भी चाहिए. पर जब हम बात करना शुरू करते हैं तो लगता है कि नहीं, हम लोग गलत थे. और जब तक हम खुद नहीं स्टार्ट करेंगे वो कभी स्टार्ट होगा ही नहीं. जैसे हम लोग मैं यहाँ पर रहती हूँ, मैं यहाँ पे क्या पहनने वाली हूँ, मैं क्या नहीं पहनने वाली हूँ, मेरे पिक्चर्स, मेरी एवरीथिंग, मेरे लाइक कोसों दूर बैठे घर पे. मैं दादरी से आती हूँ, ग्रेटर नोएडा के पास एक छोटा सा कस्बा है, राइट. तो वहाँ पे बैठे हुए आंटी, अंकल, चाचा, ताऊ सबको इफेक्ट करता है मैंने क्या पहना है, मैं किन के साथ घूम रही हूँ. अच्छा, मैंने पार्टी में गई थी तो मेरे हाथ में विस्की थी या मॉकटेल थी, मॉकटेल में क्या मिलाया उनको ज़रूर जानना है. तो आप समझ रही है, वो चीज़ें जो उनको जानना है मुझे बताना नहीं है, राइट. और इस शो में जो हम बात कर रहे हैं यहाँ सिर्फ मैरिड कपल्स और अनमैरिड कपल्स या फिर कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है इस पूरे शो में. आप शो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो शिट, हमने बहुत छोटी चीज़ें देखी हैं प्रोमो में या फिर छोटी सी क्लिपिंग में. आप शो को देखेंगे तब समझेंगे कि नहीं, आपके लिए वो शो बहुत अलग तरीके से इफेक्ट करेगा और दूसरा बंदा जब देखेगा तो उसके लिए बहुत तरीके से इफेक्ट करेगा. बिकॉज मेरे लिए जो है वो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए है वो मेरे लिए नहीं है. सवाल जवाब. Interesting answer. Very interesting answer. It's none So of your business. I think we've got all the answers now. Just to add to that, मैंने एक फिल्म की थी कियन का. आज भी लोग मुझे आके बोलते हैं यार इतनी बड़ी चीज थी कि एक हाउस हस्बैंड बन गया और you empowered your, मतलब who am I to empower? At the end of the day, in their relationship also to some degree वही देखा जाता है. तो चाहे बड़ा शहर हो या छोटा कस्बा हो, आज भी सोसाइटी में कुछ चीजें हैं जो बहुत बड़े तरीके से देखी जाती है कि यार औरत काम करेगी तो बच्चा कब पैदा करेगी. That is what the question is. Yeah. I would like to say this, I'm 37, I'm not married. It's quite an old age by Indian society standards to not be married, correct? So there is a lot of conversation about what? Not about my work. When am I getting married?
Because that is how conditioning is. It is not one person's fault. It is conditioning in society about so many things. So I think what's interesting, show के जरिए conditioning हर आदमी की अलग होती है, किस level पे होती है. That also I think will be interesting for people to gather how they see it. When I did a film like संदीप और पिंकी फरार, वहाँ पे एक औरत जो ambitious थी उसको नीचा दिखाया जा रहा था. एक मर्द जो MCP था, he learned the value of what it is to be with another woman that he does not have to be physically intimate with, but can still have respect. To respect each other. That is something that is also a very interesting thing, that in our country we don't sometimes understand the dynamic of respect. Doesn't have to be anything but just having equal conversation. Yes. There are so many small things that I'm sure through this show, and the films that we do is one thing, but today we're talking about the show. I just use mine as an example because सब relate कर पाएंगे. इनकी कहानी में वही कहानी है अगर आप देखें. Yeah. कहीं ना कहीं वो 100 बात की एक बात वाली जो बात होती है ना, कि आप कियन का देख लीजिए या इनकी कहानी देख लीजिए, वो चर्चा वही हो रहा है, चाहे वो छोटे शहर में हो या दिल्ली के गुड़गांव के कोने में हो. सो इट इज वन एंड द सेम थिंग, एंड दैट मीन्स वो प्रॉब्लम है और वो बात करना जरूरी है अलग अलग तरीकों से. 2 states also, yes. So every film also has its, but at the end of the day, when you're doing a show like this, they've been able to touch upon, like she said, iske through can women work? Why do people have an issue? Why should it be that when they get married they should have kids? If she wants to make a film about sex to educate people, why is it looked at कि यार अच्छे घर की लड़कियां ये बातें नहीं करती? Why these certain connotations put? I think it's fascinating to know that you can watch a show and see so many facets to society where, right or wrong, we have been educated or brought up a certain way. Why can't we change the thinking? And it's just a thought. It's just provoking thoughts. At the end of the day, आप अपने घर पे क्या करो, हम force नहीं कर सकते, लेकिन एक thought दे सकते हैं. So I think the show, I hope, works in that to create a thought. That is all it is. Sorry, I added to your. वो creating a thought ही एक बहुत बड़ा step होगा. Very rightly said by Sir Arjun Kapoor. Thank you very much. And on that note, I think it's time for us for a photo op. Everybody. Yes.